یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر، پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر داخلہ کی صدارت میں نئی دلی میں جموں و کشمیر سے متعلق اعلیٰ سطح کی میٹنگ، ترقیاتی اور سلامتی امور کا لیا گیا تفصیلی جائزہ۔ صدر جموں میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 4 ملیٹنٹ ہلاک، کافی مقدار میں اسلحہ برآمد، ADGP جموں۔ کووڈ کی روک تھام سے متعلق ناک کے ذریعے سے دیا جانے والا ویکسین انکوویک جنوری کے آخری ہفتے سے ہو جائے گی دستیاب، اور رامبن میں مبینہ طور پر دم گھٹنے کے واقعے میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد از جان۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں جموں و کشمیر سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ آج صدر جموں میں بھاری ہتھیاروں سے لیس 4 ملیٹنٹوں کی ہلاکت کے بعد منعقد کی گئی اس اہم میٹنگ میں جموں و کشمیر کی ابھرتی سلامتی صورتحال کے علاوہ ملیٹنسی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں اور لوگوں کے علاوہ مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے کمار بھلا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، DGP دلباغ سنگھ اور دیگر سینئر افسران نے بھی شرکت کی۔ اعلیٰ سطح کی اس میٹنگ میں جموں و کشمیر UT میں زیر عمل ترقیاتی پروگراموں کا بھی باریک بین جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے سلامتی ایجنسیوں اور دیگر متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے ساتھ ہی جموں و کشمیر انتظامیہ کو بھی ہدایت دی کہ ترقیاتی عمل کو سرعت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تاکہ ترقی کے فوائد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جموں کے سدرا علاقے میں آج فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 4 ملیٹنٹ مارے گئے۔ ADGP جموں مکیش سنگھ نے بتایا کہ یہ آپریشن اس وقت عمل میں آیا جب مشکوک نقل و حرکت کے ایک ٹرک کو روکنے کا اشارہ کیا گیا، تاہم اس میں سوار ملیٹنٹوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر گولیاں برسائیں۔ جوابی کارروائی میں 4 ملیٹنٹ مارے گئے۔ مارے گئے ملیٹنٹوں کے قبضے سے 7 AK-47 رائفلیں، 3 پستول اور کچھ گولی بارود برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے۔ یہ ٹرک سری نگر سے جموں جا رہا تھا۔ بھارت بائیو ٹیک نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی روک تھام کی ایک اور ویکسین انکوویک لوگوں کے لیے جنوری کے چوتھے ہفتے سے دستیاب ہو جائے گی۔ یہ ویکسین ناک کے ذریعے دی جانے والی پہلی ویکسین ہے۔ حیدرآباد میں قائم بائیو ٹیکنالوجی کمپنی نے بتایا کہ اس ویکسین کی قیمت پرائیویٹ مارکیٹ کے لیے 800 روپے اور سرکاری اسپتالوں کے لیے 325 روپے ہوگی۔ بھارت بائیو ٹیک نے انکوویک ویکسین امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر تیار کی ہے۔ اس دوران ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 188 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ 141 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ ملک میں سردست صحت یابی کی شرح 98.8% ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پورے ملک میں اب تک 220 کروڑ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ضلع رامبن کے بنیہال علاقے میں آج صبح ایک ہی کنبے کے 4 افراد پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ SSP رامبن کے مطابق یہ افراد بنیہال کے چیک ناروا چوپان پورا علاقے میں اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے، جن میں ماں، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ ان کی موت مبینہ طور پر دم گھٹنے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر رامبن سجاد شاہین نے اس المناک واردات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے غمزدہ کنبے کے حق میں فوری ایکسگریشن امداد منظور کرنے کی درخواست کی ہے۔ محکمہ زراعت کے فائنانشل کمشنر اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج تالاب تلو جموں میں 5,200 میٹرک ٹن صلاحیت والے کولڈ سٹور کے تعمیری کام کا آغاز کیا۔ یہ سرد خانہ جموں و کشمیر ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ
नाबार्ड लोन स्कीम के तहत 22 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करेगी। इस मौके पर जानकारी दी गई कि इस कोल्ड स्टोर में ताजा मेवाजात, सब्जियां, खुश्क मेवे, डेयरी मसनूआत, फूल, गोश्त और मछलियां स्टोर की जा सकेंगी, जिसका बरह रास्त फायदा पुंछ, राजौरी, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा और इनके मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसानों को पहुंचेगा। अटल डोलू ने मुतालिकीन को इस प्रोजेक्ट का काम मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाडूरा कैंपस में नौजवानों के लिए MSME वजारत की जानिब से स्पॉन्सर करदा 6 हफ्तों का तरबेती प्रोग्राम आज मुकम्मल हो गया। तिजारती पैमाने की सब्जियों की काश्त और मार्केटिंग से मुतालिक ये हुनरमंदी पर मबनी एक प्रोग्राम था जो 18 नवंबर से शुरू होकर आज 28 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हो गया। प्रोग्राम के दौरान समाज के कमजोर तबकों से ताल्लुक रखने वाले 25 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को जरूरी तरबियत दी गई, जिसका एहतमाम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किया था। खबरों का बुलेटिन आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के 138वीं यौम तासीस के मौके पर आज वेरनाग अनंतनाग में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी ने भारत की तामीर में कांग्रेस के से ताल्लुक रखने वाले अहम लीडरों की खिदमत और कुर्बानियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अपने कयाम से ही कांग्रेस ने न सिर्फ ईंट जोड़कर हिंदुस्तान को बनाया, बल्कि किसी इम्तियाज के बगैर समाज के तमाम तबकों की फलाह बहबूद के लिए भी अनथक काम किया। इस मौके पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम भी शुरू किया गया और अब बताया गया कि यह यात्रा 22 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में दाखिल होकर यूटी में 30 जनवरी को अपना सफर मुकम्मल करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर में तेजी के साथ फैल रही मनशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए इंतजाम की तवज्जो मबजूल कराई है। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मनशियात की बिद्दत मुआशरे में इस कदर सराहियत कर गई है कि हाल ही में नशे में धुत एक नौजवान ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि मनशियात की रोकथाम के लिए न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त इकदाम करने की जरूरत है, बल्कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को बुरे कामों से बाज रखें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के तुलमुला कैंपस में आज शोबे मजहबियात और डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के बाहमी इश्तराक से एक सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अंधेरे से निकालकर उजाले की राह पर गामजन किया। इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी, मारूफ दीनी स्कॉलर मुफ्ती नजीर अहमद कासमी, मौलाना अदनान नदवी, रजिस्ट्रार सीयू के मोहम्मद अफजल जरगर और दीगर अहम शख्सियात ने सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलग अलग पहलुओं को उजागर किया। इसी दौरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में आज मनशियात की बिदत से रूहानी तौर पर निपटने और वालिदैन की जिम्मेदारियों के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार का एहतमाम यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज, डीन आउटरीच और मंतकी सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शम्मा फाउंडेशन के इश्तराक से किया था। कश्मीर में इस्लाम के बानी हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स खतलान की 652वीं तकरीब 30 दिसंबर यानी जुमा को वस्ती एशिया और बरसगीर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां नमाज जुमा के बाद खत्मतुल मुअज्जमात, दरूद अज़कार और औराद ख़्वानी की मजालिस आरास्ता होंगी। वतरहल बड़गाम की मारूफ दीनी व समाजी शख्सियत सैयद कवामुद्दीन अंद्राबी का इंतकाल हो गया है। उनकी इज्तिमाई फातहखानी 31 दिसंबर को दिन के 11 बजे उनके आबाई मकबरा वतरहल बड़गाम में अदा की जाएगी।
सिक्किम श्रीनगर में शोबे क्लिनिकल रिसर्च की जानिब से तीसरा सालाना तहकीकी दिन मनाया गया। 40 मुंतखबा फैकल्टी मेंबरों में से 18 रिसर्च पेपर्स को साइंसी सेशन में पेश किया गया, जिनका पैनलिस्टों ने जायजा लिया। इस मौके पर सुकॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने तिब्बी पेशेवरों की खिदमत को सराहते हुए सिक्किम इंतजामिया की भी तारीफें की। उन्होंने कहा कि तकनीक में जिद्दत ने दुनिया में इनकलाब लाते हुए बहुत सी बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंका है। इस मौके पर डायरेक्टर स्कीम्स प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने रिसर्च डे के इनेकाद पर मुतल्लिका शोबे की सताइश की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई ने एक तफसीली इत्तलानामा अपने वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया है, जिसकी रूह से 10वीं और 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के दरमियान कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहान, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 2 जनवरी को शुरू होंगे, जबकि इम्तिहान मुकम्मल होने की तारीख 14 फरवरी है। हुकूमत ने इस बात का इरादा किया है कि भारतीय रेलवेज की निजकारी का कोई मंसूबा नहीं है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने प्राइवेट कंपनियों के जरिए ट्रेनें चलाने की बात से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह काबिल अमल नहीं है, क्योंकि हुकूमत मुसाफिरों को तकरीबन 55% रियायत देती है, जो कि गालिबन प्राइवेट कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुस्तहकम बुनियादी ढांचा तामीर करने, अंदरून मुल्क टेक्नोलॉजीज को फरोग देने और भारतीय रेलवेज की जदीदकारी के लिए अनथक काम कर रही है। अश्विनी वैष्णव, जिनके पास मवासलात और इलेक्ट्रॉनिक्स व इतलाती टेक्नोलॉजी महकमे का चार्ज भी है, ने एतमाद जाहिर किया है कि 5G खिदमात मुल्क के 80% हिस्से में फराहम कर दी जाएंगी। ये खिदमात 24 से 36 महीने के दौरान फराहम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी मिल्कियत वाला टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL 5G खिदमात अगले साल से शुरू कर देगा। वैष्णव ने कहा कि मुल्क के 50 शहरों में 5G खिदमात शुरू की जा चुकी हैं और इसमें हर हफ्ते तकरीबन 5000 नई जगहों को शामिल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC ने अफगानिस्तान में लड़कियों के 6ठी जमात से ऊपर के सभी स्कूल बंद करने से मुतालिक तालिबान के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। UNSC ने कहा है कि उसे इन खबरों पर सख्त हैरानी हुई है कि तालिबान ने ख्वातीन और लड़कियों को यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने से रोक दिया है। उसने अफगानिस्तान में ख्वातीन और लड़कियों की मुकम्मल मसावियाना और बामकसद शिरकत पर जोर दिया है। सलामती कौंसिल ने तालिबान से कहा है कि वो स्कूलों को फिर से खोल दें और उन पॉलिसियों और तौर तरीकों को फौरी तौर पर खत्म करें जिनकी बदौलत अफगानिस्तान में अवाम की बुनियादी आज़ादी में तेजी से कमी वाक़या हो रही है। बताया जाता है कि तालिबान ने गैर सरकारी तंजीमों और बैनुल अक़वामी तंजीमों की खातून मुलाजमीन को भी काम करने से रोक दिया है। और अब आखिर पर मौसम से मुताल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आप समाप्त करें तबसरा।